اللہ اس کو موضوع بحث بناتا ہی نہیں، بس وہ موضوع بحث لوگوں میں بنتے ہیں، اللہ کے یہاں نہیں بنتے۔ اللہ اپنا حساب کتاب بالکل برابر رکھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے بزرگ تھے علامہ حضرت امیر شہید سید عطا شرف، تو فرمایا کرتے تھے جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، جو زکوٰۃ دیتا ہے اور جو نہیں دیتا، جو نہیں دیتا تو وہ اس لیے نہیں دیتا کہ جب دوں گا تو مال کم ہو جائے گا، ہاں جی، مال میرا دوسرے کے پاس چلا جائے گا، 1,00,000 ہے تو 2,500 کا اس کو دینا پڑے گا، تو 2,500 ختم ہو گیا نا، تو اس کے جیب میں بھی اس کی زکوٰۃ کی جائے۔ ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے 2,500 دے دو، 1,00,000 کی فیس وہ میں نے دے دیا، تو فرماتے ہیں کہ سال کے بعد زکوٰۃ دینے والا اور زکوٰۃ نہ دینے والا دونوں بیٹھ کر کے حساب کیا کریں کہ نقصان کس کا زیادہ ہوا۔ جو اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی بلائیں ڈالتے ہیں، کئی بلائیں ڈالتے ہیں۔ آپ یہاں بھی تھوڑی دیں گے، اگر یہاں آپ کی چیزیں گورنمنٹ اگر جب مسلمان، لیکن آپ اگر وہ کیا کہتے ہیں چیٹی میں کچھ رقم دیں تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ پیدا تو دیتے ہیں، انکم ٹیکس میں پیدا نہیں دیتے، کیونکہ یہ آدمی ٹیکس دیتا ہے، یہ دنیا کی بات ہے، وہ تو اللہ کا مسئلہ ہے۔ تو جب اللہ کا مسئلہ ہے، اللہ کے حکم پر عمل کریں گے تو کیا خیال ہے مالک کائنات اس کے اندر ہماری مدد نہیں کرے۔ تو فرماتے تھے کہ دونوں آدمی بیٹھ گئے 3 سال کے بعد، تو جس نے زکوٰۃ دی ہو، صدقہ دیا ہو، اللہ کے راستے کے اندر اس نے مال دیا ہو، اس کا نقصان کم ہوا ہوگا، اور جس نے زکوٰۃ نہ دی ہو، صدقہ نہ دیا ہو، اللہ کے راستے نہ دیا ہو، اس کا نقصان زیادہ ہو چکا ہوگا کہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کہیں بیماری ہو گئی ہے، کسی میں مقدمے پھنسا ہوا ہے، کہیں کوئی نہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا حساب برابر کرتا ہے۔ اللہ کو حساب کرنا آتا ہے، ہمیں کرنا آئے یا نہ آئے، اللہ کا حساب ایسے ہے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اللہ حساب پورا کر دیتا۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی یہ سوچ کر اپنا کاروبار بند کر دے، صحت بھی ہو، حالات بھی ٹھیک ہو، لیکن کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت کما لیا، اب بڑی بلڈنگیں ہیں، ٹھیک ہے اللہ کرے گا، ہم یہ بھی بیٹھے ہیں، وہ اس کے اندر کرایہ آ رہا ہے، ہمارا جی گزارا ہو رہا ہے، وہ تو اچھی بات، تو اللہ تعالیٰ نے انکار نہیں کیا۔ لیکن یہ آدمی یہ سوچے کہ جس وقت میں کاروبار کر رہا تھا اس وقت میرے کاروبار میں مال اتنا زیادہ آتا تھا، وہ سب تھی، لیکن ہوا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کی امداد ہو جاتی تھی، کوئی غریب پل جاتے تھے، کوئی ضرورت پوری ہو جاتی تھی، کسی کی بھی پریشانی پوری ہو جاتی تھی۔ لیکن وہ سوچے کہ اب جب میں کام چھوڑ کے بیٹھا ہوں، اگر اللہ نے مجھے صحت بھی دی ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب میں کرائے پر بیٹھا ہوں تو پہلے سے اگر 100 گنا تھا اب مجھے 10 گنا آ رہا ہے، ٹھیک ہے 10% آ رہا، پہلے 100% تھا، تو لازمی بات ہے تو وہ اپنے آپ سے اپنے ہاتھ سے خرچ کرنے کے لیے 90% کبھی آ گئی، 90% کبھی آ گئی۔ تو جب 90% کبھی آ گئی تو اسلام کا نظام زکوٰۃ ختم ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کا نظام زکوٰۃ جو ہے اس پر سب سے بڑی ضرورت، اس لیے کہ مسلمان جب کاروبار کرتا ہے تو نظام زکوٰۃ کی بنیاد پر تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں میں نہیں رہی، نہ نہیں رہا تھا، کچھ نہیں رہا۔ روایات کے اندر آتا ہے عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اگر دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر پہ گریبان کرنا۔ اب وہ کون ہے؟ عمر کون ہے جو کہہ سکتا ہے، یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا نظام ایسا کہ کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا؟ وہ کون عمر ہے؟ اس کو اس بات کا خیال تھا کہ قیامت کے دن میرا گریبان پکڑا جائے گا، تو اس نے اپنا نظام ترتیب دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سنتوں کو سامنے رکھ کر اس طریقے سے ترتیب دیا نظام کہ ایک دفعہ انہوں نے لوگوں سے کہا بیت المال سے یہ مال لے جاؤ، یہ گھوڑے میں مال کھلا دیتا ہوں، یہ اونٹ تمہیں مال کھلا دیتا ہوں، یہاں مدینے میں تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں، جاؤ تلاش کرو کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا مل جائے، تلاش کرو۔ آج کل تو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ساری دنیا زکوٰۃ مانگتی ہے، تو نظام اسلام کی تلاش ہو جاتا ہے، تلاش کر کے نکلے
15-20 दिन गुजरे, महीना गुजरे, एक आदमी जो 10 ऊँट लेकर गया था बाप से लड़े हुए, जब वापस आ रहा है तो 20 ऊँट जा रहा है। 10 हफ्ते लग गए, 10 घोड़े बेच के दिए कि जाओ ये घोड़े ले गए, उसके ऊपर माल लगाओ, गरीबों को दे रहा हूँ। वापस आ रहा है तो 19 घोड़े साथ ला रहा है। उमर ने पूछा क्या बात है? अमीर मोमिनीन मुबारक हो, आपकी सल्तनत में कोई आदमी ज़कात देने वाला है। आपकी सल्तनत में ज़कात देने वाला ही नहीं है। और ये लोगों के दिलों में अल्लाह के लिए ज़कात देने का ये जज्बा है कि हम 10 ऊँट लेकर गए थे, लोग ऊँट अकड़ कर देगा, ऊँट पकड़ा दिया, अभी ये जो हमारे पास भी बच्चों को मान पड़ा है। जब मुसलमान के दिल में ये था कि मैंने माल कमाना है अल्लाह के लिए, और फिर इसी माल से मैंने अल्लाह के बंदों की मैंने मदद करनी है, तो उसका नतीजा क्या है कि दुनिया में देखा को मिला आया कि कोई कुत्ता भी भूखा नहीं मरता था। तो गैरों ने किसी उम्र ला को देखा, पता चला कि घर में बच्चे भूखे हैं, बिलख रहे, क्या वजह है? बच्चों को दूध नहीं मिला। उमर ने नाफिज कर दिया कानून, आज के बाद मेरी सल्तनत में, इस्लामी सल्तनत में जो भी बच्चा पैदा होगा उसकी जिम्मेदार ममलिकत है, हुकूमत है, माँ बाप नहीं है। जब बच्चा पैदा होगा उसका दूध, उसका बच्चा जवान होने तक का जुमात हो जाएगा। हर घर का दरवाजा खटखटा के उसके घर में जाकर उसका हक दिया, नहीं मांगा तब भी दिया। मशहूर है ना बात। उमर रात को फिरते थे, एक दफा कान लगाकर सुना करते थे लोग मेरे मुतल्लिक क्या कहते हैं। आजकल सीएडी है ना, आजकल तो सीएडी हमारे पाकिस्तान की बात करते हैं, वो तो इसलिए होता है कि अगर किसी ने इस्तिगराक किया पकड़ो। लेकिन उमर इसलिए अपने कान लगाकर सुनता था कि मैंने क़यामत को जवाब देना है। कान लगाकर सुना, एक औरत बच्चों से कह रही है, बच्चे रो रहे हैं, बच्चों से कह रही है कि बेटा खामोश हो जाओ, क़यामत के दिन अमीरुल मोमिनीन का मैं गिरबान करूंगा। उमर कान लगाकर सुन रहा है, लड़क जाता है। वहीं से चलते हैं, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के साथ हैं, एक खादिम गुलाम साथ बैतुल माल में गए, सामान निकाला, बोरी में बांधा, खाने पीने की जो भी अशिया आटा था, दाल था, दलिया था, जो भी था, खजूर थी, सत्तू था, इकट्ठा किया। जब इकट्ठा करके बोरी बांधी गई तो अपने खादिम से कहा, गुलाम से कहा कि इसको मेरी कमर के ऊपर रख दिया जाए। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला किया अमीरुल मोमिनीन, ये गुलाम मौजूद है, इसके ऊपर उठाने फरमाया क़यामत के दिन उमर का गिरबान रखा जाएगा। क़यामत के दिन उमर किससे सवाल होगा? इससे सवाल नहीं होगा। चुनाचे वो लेकर आए, दरवाजा खटखटाया, औरत से कहा कि तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ लाया। औरत एक तरफ हो गई, अपने हाथ से लकड़ियां चलाई, धुआं निकलने लगा। जब आग में आता है हाथ को जलाने के लिए, उमर फारूक फूंके मार रहे थे और धुआं उमर फारूक की दर्द की होता हुआ आसमान की तरफ जाता। पकाया खाना बनाया, बनाने के बाद कहा बच्चों को उठाओ। बच्चे उठाए, उठाकर खिलाया, खिलाने के बाद बच्चे सो गए। सुलाने के बाद यही अमीरुल मोमिनीन उस औरत के सामने कहता है, अब तो उमर को क़यामत के दिन पकड़ो, अब तो उमर को क़यामत के दिन गिरबान ही पकड़ो। ये निज़ाम कि घर में दरवाजा खटखटा है, उठाकर सोयो, उठाकर उनका हक उसको दिया, वहां तक पहुंचाया। ये है इस्लाम, ये है दीन। यही बात जिनको अल्लाह ने माल दिया है, क़यामत के दिन अल्लाह उनको भी पकड़ेगा कि मैंने माल तुम्हें दिया था, कितने लोग थे भूखे मर रहे थे, मैं तुम्हें उनमें भी शामिल कर लेता। कितने लोग परेशान थे, मैं उन्हीं में तुम्हें शामिल करता, लेकिन मैंने तुम्हें माल दिया, मैंने रिज़्क़ दिया। तुम्हारे होते हुए दो लोग भूखे मर गए, तुम्हारे होते हुए लोग क्यों कैसे मर गए? चलो तुम सारा माल ना देते, मैंने तो तुम्हें
40वां हिस्सा ही कहा था ना, अपने माल इसमें 40वां हिस्सा नहीं डाला था तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला। तो ये दुनिया के अंदर अगर माल है, अगर अल्लाह ने दिया है तो इसको खर्च करने के मुतल्लिक़ भी कि कहाँ खर्च करो, कहाँ ना। आप यहाँ पर भी देखें कि माल इस मुल्क में अगरचे गैर मुस्लिम मुल्क में है, लेकिन यहाँ पर भी कानून है, आपसे पूछते आपके पास माल कहाँ से आया, पूछते हैं के बाद आप टैक्स जब देते हैं, टैक्स यही है ना, आपको माल कहाँ से आया, आपने माल कहाँ खर्च किया। तो ये तो दुनिया में जो मुसलमान नहीं है वो भी पूछता है, वो तो खालिक के कायनात है, तो उससे तो पूछना ही पूछना। ये पूछती है कहाँ से आया, कहाँ खर्च किया आपने, कैसे आप लाए, कौन सा तरीका था, इसके अंदर कोई ड्रग बनी तो नहीं थी, इसके अंदर कोई टैक्स बचाया हुआ तो नहीं था, आपने टैक्स दिया या नहीं, क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा आपने ज़कात दी या नहीं। ये पूछती है टैक्स दिया या नहीं, अल्लाह पूछेगा ज़कात दी या नहीं। अल्लाह के निज़ाम, दुनिया के अंदर जितने निज़ाम है ये अल्लाह के निज़ाम के साथ चल रहे हैं। ये फितरतन काफी ही क्यों ना हो, वो अल्लाह के दिए हुए निज़ाम के चल ही नहीं। आज पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम है, वो अल्लाह के दिए हुए निज़ाम के साथ ही चल रहा है। इनसे जाकर पूछो, ये कहते हैं उमर लाख मांगे, हज़रत उमर ने जो बच्चे का दूध काटो कर दिया, आज इन लोगों ने बच्चों की तमाम सहूलियत गवर्नमेंट की लगाई हुई है। आप तो ज्यादा जानते, मैं तो किस हूँ, आपको मालूम है बच्चा जब पैदा हुआ बस ये काम कर दिया उमर ने की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तो कुरान ने कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इबादत सिर्फ नमाज रोजा का नाम नहीं है, हज का नाम नहीं है, इबादत दूसरे की खिदमत करने का नाम है, दूसरे की मदद करने का नाम भी है। यही वजह है कि क़यामत के दिन अपने आमाल जितने भी होंगे वो सब ठीक है, लेकिन क़यामत के दिन जो बख्शे जाने वाले वही होंगे जो दूसरों की मदद करने वाले होंगे। अल्लाह ताला ने मेरी मदद करके मेरे बच्चे की मदद की, मैं इसको वापस अल्लाह ताला तो इसलिए फरमा रहे हैं कि मैंने इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन इबादत के लिए अल्लाह ताला ने जो पैदा किया तो इबादत में अल्लाह ने बंदे को आजाद नहीं छोड़ा, पाबंद किया। आप अपनी अकल के मुताबिक इबादत करें, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इबादत करें, आप अपने ख्यालात के मुताबिक इबादत करें, आप अपनी थिंकिंग के मुताबिक। जैसे आजकल के जमाने में अगर मौलवी की बात करता है वो कहते हैं यही है ना, बड़े बड़े स्कॉलर पैदा हो गए। एक स्कॉलर सबसे पहला स्कॉलर तो उस वक्त पैदा हुआ जब अल्लाह ने फरमाया था कुछ सुजूद आदम के सामने झुक जाओ, तो सारे मुल्ला झुक गए थे, लेकिन एक स्कॉलर खड़ा था। तो क्या कहते हैं खलक करी वखलक तौहीद, उस स्कॉलर कहने लगा व्हाई आई थिंक। आज वही उसको मानने वाले जितने स्कॉलर हैं, जब कोई मौलवी बात वो बोल नहीं, वो पुराना आज तक सच्ची जमाना है, जदीद दौर है कि आपकी बात जमाना आज भी दाहर को कहते हैं, दाहर जमाना जमाना, और दहरिया किसे कहते हैं जो जमाने की बात करता है। जो दहरिया कहते हैं पुराना आप ये दहरिया हो गए, वो इसलिए उसको दहरिया कहा जाता है जमाने की बात। लेकिन दीन जो है वो जमाने की बात नहीं करता, वो अल्लाह की बात करता है। इसलिए कि जमाने तो अल्लाह ने बनाए, तो जिस जमाने में भी जाओगे उस जमाने में अल्लाह की बात करोगे तो कामयाबी है, जमाने की बात करोगे कामयाबी नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह को तामीर फरमाया, ये उनका जमाने था। उसके बाद अल्लाह ने उनको फरमाया आप ऐलान कर दो दुनिया से लोग हज के लिए आए, उन्होंने अल्लाह की तरफ से ऐलान कर दिया हज के लिए, दुनिया आज तक हज के लिए जा रही है। ठीक है ना, ये उस जमाने में बैतुल्लाह जो था वो उस जमाने के अंदर था, बैतुल्लाह था, उसके अंदर कोई भी बुत नहीं था, कुछ भी नहीं था। इब्राहीम ने इस्माइल ने तामीर कर दी, लेकिन जमाना गुजरता बैतुल्लाह वही रहा, लेकिन गुजरते जमाने के साथ साथ वो बैतुल्लाह के अंदर कुछ तब्दीली पैदा हुई, तब्दीली हुई जमाने वालों ने। आजकल के जमाने में बैतुल्लाह को भी रहा, उसकी इतराफ करना भी वही रहा, उसी तरीके से लोग इतराफ करते रहे बैतुल्लाह।
اسی طریقے سے بیت اللہ کے طرف حاجی آتے تھے تو آپس میں مل کر فیصلے کرتے تھے کہ حاجیوں کا پانی کس نے دینا ہے، حاجیوں کو کھانے کس نے دینا ہے، رہائش کس نے دی، مل کر سارے کرنا. سارا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ اپنے زمانے کے لوگ. اب یہ زمانہ وہ نہیں تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا. گھر وہی تھا اللہ کا، احترام وہی تھا، حج اسی طریقے سے ہو رہا تھا، ہر بار حاجیوں کی خدمت اسی طریقے سے ہو رہی تھی. زمانہ بدل گیا تھا اور اس کے حالات بھی بدل گئے تھے. زمانے کے مطابق سب نے بیت اللہ کا استعمال شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ابو جہل جس کو ابو الحکم حکمت کا باپ کہا جاتا تھا، بعض لوگ اس کو ابو الحکم یعنی فیصلہ کرنے کا باپ سمجھدار تھا، وہ موجود تھا. ابو سفیان تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا. یہ کون سے لوگ اس وقت سرداران مکہ اور قریش تھے، اور جس سے پوچھو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر چلنے والے. دین ابراہیم میں حج تھا اور کچھ تو نہیں تھا. وہ کہتے ہیں ہم دین ابراہیم میں چلتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم عمرہ کرتے ہیں، ہم طواف کرتے ہیں. سب اس زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا. جب اللہ نے مبعوث فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. پورا 40 سال کا دور گزارا اللہ کے نبی نے تو سب نے کہا یہ سچا ہے یا ایماندار. سب نے کہا اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ جھوٹ کہہ ہی نہیں سکتا، اس کی زبان سے جھوٹ نکل نہیں سکتا. ایسا ہر شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسم اٹھانے کے لیے تیار تھا. جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما دیتے اس کو وہ لوگ عزت سمجھنے کے لیے دنیا ادھر کی ادھر جائے لیکن محمد کا کہا ہوا کبھی غلط نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس کے تشریف لانے پر ابو لہب کی لوڈی صحابہ صوبیہ لفظ نہیں صحابہ یہ بات نہیں، یہ غلط فہمی ہے. صوبیہ لفظ نہیں ہے، صحابہ. تو صحابہ نے آ کر اس وقت اطلاع دی کہ تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس نے انہی قدموں پر پڑی ہوئی لوگوں کو آزاد ہے. اتنا احترام ہے. اس کے بعد وہی بھتیجا وہاں پیدا ہوا. لیکن جب لا الہ الا اللہ کی بات تھی تو اب زمانے والوں کو بات نہ آئی. زمانے والوں کو بات پسند نہ آئی کہ زمانے کے ساتھ چلو. تو سب سے پہلا الزام نبی پر کیا آیا کہ یہ کمیونٹی کو لڑانے کے لیے آیا. سب سے پہلا الزام کیا آیا؟ یہ کمیونٹی بڑے آرام سے بنا رہے تھے، بڑے آرام سے بندوبستی کر رہے تھے، بڑے آرام سے ہم رہ رہے تھے، ہمارے یہاں کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں تھا. یہ کمیونٹی کو لڑانے والا. آج یہ الزام مولوی پر بھی ہے. جب مولوی آتا ہے کہ لوگ زمانے کی بات کرتے ہیں، زمانے کے ساتھ چلتے ہیں. جب مولوی کہتا ہے کہ زمانہ کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ کی بات کو نہیں لڑانا. یہ کرنے کے لیے تو اللہ کے نبی نے جب بات کی آ کر تو سب اہل زمانہ نے بات کی. سب نے کہا کہ آپ کون سے زمانے کی بات کریں؟ جناب آپ اس زمانے کی بات کریں، اس زمانے کی بات کریں. جیسے کہ اکبر الہ آبادی نے کہا نا کہ رقیبوں نے ربٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں. رقیبوں نے ربٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا. اس زمانے میں وہ خدا کا نام لے رہا ہے. تو اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے تو سب نے بیک زبان اس بات کی کہ آپ کس زمانے کی بات کرتے ہیں، آپ کس زمانے کی بات کرتے ہیں، آپ کس زمانے کی بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں زمانہ وہ ہوں یا زمانہ یہ ہو، میں تو وہ بات کہوں گا اس کے لیے اللہ کے نبی نے یہ نہیں گھبرایا کہ ایک آدمی میں ہوں اور یہ ساری کمیونٹی میرے مخالف ہے، لیکن اللہ میرے ساتھ. ایک آدمی ابو کے ساتھ نکلا، ایک نوجوان
उसामा इब्न ज़ैद साथ निकला, एक बच्चा अली इब्न अबी तालिब साथ निकला, एक अपनी बीवी हजरत खदीजा साथ निकली। ये एक काफिला बना, ये काफिला हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने चचा मक्का बिन नौफल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले गए। वो ईसाई थे, ईसाइयत कबूल कर चुके थे। जाकर उनसे कहा ये मामला है, इसका दावा है कि मैं नबी हूँ, अल्लाह ताला ने इनको नबूवत अता फरमाई, ये दावा है। मक्का बिन नौफल ने कहा कि घबराना नहीं, तुम्हारी मुखालफत बहुत होगी, बहुत होगी, लेकिन मुस्तकिल रहना, साबित कदम रहना। इस वक्त आएगा ये लोग तुम्हारी बात से मदद तो अल्लाह के नबी ने ज़माने की बात नहीं की, बानिए ज़माना की बात की। जिसने ज़माना उसका हुक्म सारे ज़मानों के लिए है, उसका हुक्म क़यामत तक के निकालने वाले हर ज़माने से है। अगर नमाज को तो किया उसने उस वक्त तो क़यामत तक के हर ज़माने के लिए, रोज़े का हुक्म है तो क़यामत तक के लिए, ज़कात का हुक्म है तो क़यामत तक के लिए, हज का हुक्म है क़यामत तक के लिए। उसके पूरी पूरी ज़मीन जहाँ जहाँ पर ये इंसान फंसा है उस वक्त अल्लाह को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। अरे बात हमको दिखा गए आप हमारे अब यहाँ पर क्या है कोई बात करते हैं तो मैं करता हूँ मौलवी जनाब कब्र तक नीचे जाता है, तुम्हारा जनाजा जाकर के कब्र तक दुआ करके आता है, तो क्या समझे क्या कर हमारी जान हमारी भी जान छूट गई, जितना करो कब्र तक जाएंगे। और खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने उलमा की जमात हर ज़माने में रखी है, जो इंसान से पैदा हुई है उसकी कब्र तक उसका साथ देती। कौन आदमी है, कौन कॉलेज का प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी का इनके लेक्चरर ये बात तुम्हारे साथ करेगा कि जब तुम पैदा हो तो तुम्हारे साथ हो जाए, जब तक तुम मरोगे तो तुम्हारे साथ है। कोई नहीं रहता, बाप साथ नहीं रहता, बेटा साथ नहीं देता, माँ साथ नहीं देती, बीवी साथ नहीं देती, बेटी साथ नहीं देती, कोई नहीं देता। अगर देता है तो बोलने और कोई उसी मौलवी को अच्छा नहीं लगेगा, वही मौलवी जो भी मुसलमान बनाता है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, पैदा होते हो कार में आजाद देता है। और ये भाई वो मौलवी दो गैर को लड़के और लड़की को देखा नहीं, जिनका एक दूसरे को देखना तक हराम है, कोई मौलवी तुम्हें कलमा पढ़ाकर आपस में एक करके हराम कर सकता है। वही मौलवी जिस वक्त तुम मरते हो तो वो बेटा जिसके लिए रात दिन तुमने एक करके जिस को बेटे के लिए माल कमाया, रात की नींद हराम की, चैन हराम किया, सब कुछ किया, बीमारियां बर्दाश्त की, धूप बर्दाश्त की, लेकिन जब मरते हो तुम्हारे बेटा की सबको वो आग लगाने में फिर वो मौलवी तुम्हारे लिए नजर आता है, तुम्हारे तुम्हें अपनाता है, तुम्हारे सारे जिस्म की नफाकी अगर उसको दूर करता है, उसके बाद जाकर इज्जत के साथ इख्तिराम के साथ जनाजा पढ़ा के दुआ करने के बाद में कब्र के अंदर जाता है। आज पूरी दुनिया के अंदर यही है, एक ही निजाम है पूरी दुनिया में कि कौम को मौलवी से उन्हें करते हैं। आज एक ही काम है, मौलवी से कौम को दूर करते हैं और उसके लिए उन्होंने वो भी लोग और सिखाया ये सिखाया क्यों सिखाया, इसलिए ये हर बात से यूं इस्लाम की ये मानता नहीं है, हर बात में ये बाय करना, हर बात में मुसलमान, हर बात में ये आई चीज करता है। लिहाजा इसकी बात हो हर बात में बाय करता है, अल्लाह को है तो अल्लाह को है जैसे होता है हां बना क्या मतलब आए वाय और अल्लाह ने मुझे मेरे को जब गुलामी कबूल कर ली, नौकरी कबूल कर ली तो फिर क्या है, मालिक के वहाँ डॉक्टर से कहना ये किसी बात को लगता है वो कहता है या क्या है किसी बात कबूल करना या वो कहेगा आई थी वो किसी कबूल कर ले, वो कहेगा नहीं मुझे नौकर लगता है एक कुछ भाग में वाई
गलती की नहीं है, अल्लाह ने हुक्म दिया है और जो हुक्म आया जो आप लोगों को आप दुनिया को 200 साल पीछे लेकर जाना चाहते हैं। मैं कहा करता नहीं, मैं आपको 1500 साल पीछे लेकर वो आपको हाथ में खोल कर देखते हैं। मैं कहा करता हूँ मैं 1500 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ, तुम 1600 साल पीछे ले जाना। मैं कहता हूँ 1600 साल पीछे ले जाना चाहते हो, जब इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। इंसान के जिस्म पे खजूले तो मौजूद थे, लेकिन इंसानियत नहीं मौजूद। वो दौर जिस वक्त अल्लाह का नबी आया, उसने आकर तमाम पहली चीजों को खत्म कर दिया। जुल्म था, ज्यादती थी, कत्ल था, चोरी थी, डाके थे, जना था, शराब थी, जो कुछ दुनिया का था वो सोकर मौजूद था। लेकिन अल्लाह का नबी जब आया, हर चीज खत्म हो गई, जना, शराब, हर कुछ। आज का जो जदीद जमाने में क्या है, जदीद जमाने में आज सब कुछ वही कुछ मौजूद है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज नहीं सकते। अल्लाह के नबी का दौर फिल्म का दौर, फिल्म आया जनाब, फिल्म आया शराब, फिल्म आया कत्ल खत्म, फिल्म आया धोखा खत्म हो गया, फरार खत्म हो गया, फिल्म आया कत्ल गारत, हर एक बात इज्जत नौकरी हुआ। हज़रत अली ने आगे फरमाया कि अली तू इस इल्म की बरकत देता, ये काश शरीफ की हदीस है, तो मैं तो इस इल्म की बरकत देगा कि एक औरत शाम से चलेगी, दमिश्क से चलेगी, सनआ तक जाएगी, मदीने से गुजरती हुई जाएगी, पहाड़ों से जंगलों से गुजरेगी, खूबसूरत तरीन औरत होगी, जेवरात उसके पास होंगे और उसकी थैलियों के अंदर उस वक्त के जमाने के लिए वो इंसान उसके कोई फिक्र फालतू आएगी, जंगलों से गुजरेगी, पहाड़ों से गुजरेगी, यहाँ तक से वो सना तक पहुंच जाएगी। लेकिन वो हाथ उठाई के मेरे अली इब्न हातिम देखा करते थे औरत को बात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए। अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना आया, वो तशरीफ ले गए। फिर उमर का ज़माना आया, अली को लोग कहते थे कि अली हम फलां जंग में जाना है, हम अली यहाँ जंगों में जाते आगे आगे होकर लड़ते थे। तो लोग कहते थे अली आगे न जाया करो, मारे जाओगे। तो यकीन अल्लाह के नबी की जुबान पर यकीन जाना कि अल्लाह के नबी ने कहा है कि वो औरत देखेगा जब तक मैं वो औरत नहीं देखेगा। ये यकीन मुसलमान का यकीन अल्लाह के नबी की जुबान पर। आज अल्लाह के नबी की जुबान पर जब पे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते वो सब कर दो तो नहीं बोले साहब कौन सी बात। आजकल कौन इसको समझता है, आज का जमाना है ये नतीजा क्या है। अभी फरमाते हैं कि मैंने जब वो वक्त देखा मुझे मालूम हुआ कि कौन कमी है, वही तमाम खसूसियत है उसके मौजूद है। वो जब मदीना में पहुंची है उसने देखा और कहा अल्लाह के नबी की वो बात पूरी हुई, नबी की वो बात पूरी हुई और सब लोग अब मेरी मौत का ये सब खत्म हो गया। और जब ये कुछ था बुराइयां थी तो लोग कहते हैं शराब थी, बचपन काम जब नजर आता तो कहा जाता था कि इसका दौर है जिहाद। लेकिन मुसलमान आए, इस्लाम आया, जिहाद का दौर शुरू हो गया। आज पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी तालीम और इल्म के नाम पर रकम खर्च की जाती है, रकम खर्च नहीं है। दुनिया तो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज खुल रहे हैं, कोई किस तरीके से इल्म के नाम पर स्काई पर भी इल्म चल रहा है, इंटरनेट पर भी इल्म चल रहा है, गूगल पर भी इल्म चल रहा है और यूनिवर्सिटी में इल्म चल रहा है। भारी भारी जो
से अदा करेंगे ना महाराज। देखिए इतना इल्म होने के बावजूद क्या हो रहा है, दिमाग में हुआ है कि जितनी की हालत आज है इससे पहले जितनी शराब आज की जाती है इससे पहले, जितना डरा आज है इससे पहले, जितनी कत्ल वारत आज है इससे पहले, जितना इंसान को आज इंसान मार रहा है इससे पहले कभी नहीं था। तो मालूम हुआ कि जितनी हालत आज है इससे पहले, जो जगजीरत का दौर था तो मुसलमानों की फतूहात भी ठीक होता था। लोग मुसलमान को देखकर मुसलमान हो जाते हैं। आज हम मुसलमानों को देखकर धोखा करते हैं। आज हम मुसलमान हम तो गैर मुस्लिम की बात करते ही वो उनका रमजान अल्लाह भी नहीं बात करते, उनका मामला अल्लाह के साथ है, क्या करते हैं हो जाते हैं, उनका काम जाने हमें तो अपना ये अपना मसला है कि हमें किससे किसका डर है, किससे दुख है, वो हम आज मुसलमान दुनिया के अंदर दहशत फैला रहे हैं। आज मुसलमान दुनिया के अंदर दहशतगर्द पैदा कर रहा है। क्यों? इसलिए तो मुसलमान अपने रास्ते को छोड़ अपने अल्लाह को छोड़ अल्लाह के आकाम को छोड़, और जो अल्लाह के आकाम देते हैं हम उनको गाली करते हैं, मुल्ला को गाली करते हैं। दो दिन को कोई आदमी से अंदर करे वो करने की बोल जब जब बहुत किया ये कह बहुत भी तो हम कबूल किया सही बल्कि इंसान जिसने कोई जाना वो फलाने का यार एक आदमी था तो मैंने देखा था वो कहता यार आदमी तो बोल रहे तो बोल नहीं यानी हमारा फर्ज क्या है यदि वो आदमी तो वहां पर सोचते हैं हाँ वो एक मौलवी इंसान नहीं है। ये हमने अपने तसव्वुर अपने पैदा करके अपनी औलादों पर उनके अंदर ला सकता है। और मौलवी को हमने कहा कि ये एक ऐसी चीज है कि इसके जैसे पहले जमाने में काफी साफ करते थे ना, जब बाहर से कोई आता था मक्के में तो काफी कहते थे यहाँ पर एक मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शख्स है वो जादू कर देता है मैं जाना तुमको भी जादू फिर के वो कहते मौलवी के पास न जाना तो अगर आलिम आ जाएगा पहली बात ये अभी पिछले हफ्ते की बात मैंने दिया था मेरे दूसरे डॉक्टर साहब पूरा छापा खाने का एग्जाम है वो चारा डॉक्टर खुद डॉक्टर के लिए तो तीस साल बैठे बात चल वो सब वो जितना बैठे में आपका कितना हमारे लिए सबका थोड़ा सा हमारे लिए सही आज करना चाहिए तो 15-16 साल का तो जो बाबा कोई भी चला गया क्योंकि वो इंटरनेट में एकदम आ जाता है यार जो सवाल पर उत्तर नहीं आता मेरा बात में जवाब मैंने कहा आपकी डॉक्टरी के मैंने रसूल साहब को पूछा वो कैसे और इंजीनियर साहब भी नहीं बोलना आप क्यों नहीं अपना जो डॉक्टर साहब है उससे पूरे लोग और ये इंजीनियर साहब और आप आज तक उसके बाद तस्लीम करना है फिर दवाएं बनाना है लेकिन सब जराल आ रहे उसके लिए काम साथी कर सकती है इसी तरीके से ये साथ तक जमाना आ गया है तेरी से अपने बिल्डिंग बनाने के लिए कई कुछ करना होता है वो किसी को नहीं बच्चे माशाल्लाह आप बहुत अच्छे बुलाए मैंने कहा मौलवी के लिए आता है लेकिन साथ साथ में 2 साल का मैंने कहा आपको पता है आजकल कितने उठ रहे हैं पहले जितने फितने आजकल ज्यादा आ रहे हैं उन फितनों की रोजाना एक नया फितना होता है उन नए फितनों की ताकीद तस्दीक के बाद उसको मुकर करना ये भी मौलवी का काम है। इसके लिए अगर मौलवी 15 साल लगाता मेरे हिसाब से तो 20 साल
دلی کے اتنے فتنے جو اٹھ رہے ہیں وہ سب کے سب اسلام کے نام پر اٹھ رہے ہیں، بدتمیزی سے، دوسرے نام سے نہیں، اسلام کے نام سے اٹھ رہے فتنے، اور ان کو بتانا کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا نام استعمال کر رہا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ وہ جب وہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آپ کسی کو بیمار بناتے نہیں، آپ لوگوں کو بیمار بنانے کے لیے بیمار، آپ کسی کو بیمار بناتے نہیں، اس لیے مولوی ڈاکٹر بتاتا ہے، یہ کھاتا ہے، بناتا نہیں ہے، مولوی کسی کو ڈاکٹر نہیں بناتا، مولوی بتاتا ہے، جس طریقے سے ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ بیمار ہے، بناتا نہیں ہے، اس لیے مولوی بتاتا ہے۔ اسلام کے نام پر ہم سب سے بڑے خدمت کیا رہی ہے کہ ہم کو بڑا نام لو، بس اسلام کا نام لے کر آپ کو بتاتا ڈاکٹر صاحب کی سمجھ میں ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کسی نہ کسی دوست یار کسی نے تو آپ کو مستقل رکھا ہوگا نا کہ جب ایمرجنسی ضرورت پڑی آپ وہاں پر چلے جائیں۔ میں نے کہا وکیل صاحب سے پوچھا آپ کو بھی کسی نے وکیل رکھا ہوگا دکان کے یا اپنے بزنس میں آپ جب بھی کوئی معاملہ ہو سال آپ کو یہ صاحب کو بھی میں نے کہا آپ کو بھی کسی نے رکھا ہوگا جب بھی اپنے مکان بنا ہونا کچھ نہ کرنا آپ سے رابطہ کرنا۔ میں نے کہا اس کام کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، آدمی کو اس کے لیے وکیل کی بھی ضرورت ہے، لیکن اسلام کے لیے کسی مولوی کی ڈاکٹر کو بنجر بنانے کے لیے وہ ڈاکٹر رکھا ہوگا، اگر پہلے سے انتظام کیا ہوگا ڈاکٹر آ جائے گا سال پر۔ اگر رات کو پولیس آپ کے گھر میں چھاپا مارے تو آپ پولیس کو کہیں کہ میرے وکیل سے بات کرو، وکیل آئے گا ٹھیک ہے لیکن میں کہا جب ایمان پر مسئلہ ہوگا تو پھر کسی مولوی کو آپ بات نہیں کرتے، آپ کسی مولوی کو بھی کال کریں ہاں جی آج میرے ایمان آنے ہیں ذرا بتائیں میں اپنے ایمان کو جس دنیا میں بقیر جس طرح دنیا میں آپ کی زندگی میں ڈاکٹر جس طریقے دنیا میں آپ کو کام کے لیے مولوی سنان عالم چاہیے، یہ مانوی بھی چاہیے کہ ہر وقت کے ساتھ بدلتا رہے اور مسئلہ بدلتا ہے، مولوی عالم چاہیے جو آپ کو بتائے گا۔ اور یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ عبادت کا طریقہ یہ مولوی عالم بتائے گا، آپ کو معلوم نہیں، اللہ نے بتایا اپنے نبی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کی بات نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانوی زمانہ یعنی اللہ کی بات ہوتی کہ زمانہ جتنا مرضی بدل جائے وہ مرضی بات چلو ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ عبادت کیسے کرتے ہیں، نماز روزہ حج زکات یہ بھی ذاتی کی عبادت نہیں، نماز تو پڑھنے کا نام ہے لیکن عبادت کی سنت نہیں، اللہ کے اللہ کا حکم کون بتائے گا تو اللہ کرے گی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کون بتائے گا جس نے جناب کو پڑھا ہے، جس سے اس کو سمجھا۔ میں ایک دکان دے کر خدمت کرتا ہوں تو بہت سب کی آپ کو پڑھتا ہوں، آپ نے اس کو جاب پر نہیں جانا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہے میں تو پاکستان کے بعد میں یہاں کا مجھے بنایا لیکن یہاں پر بھی اس میں خرچہ ہے ہمارے یہاں جو بجلی ہوتی ہے وہ پیچھے سے وہ کیا ہوتا ہے بڑا گریڈ اسٹیشن ہوتا ہے وہاں پر بجلی بند کر پھر وہاں سے بجلی آتی ہے وہ جو بجلی ہوتی ہے تاروں اس کے اندر 11,000 وولٹ ہوتے ہیں، 11,000 یہاں پر بھی ادھر ہی ہوگا یا شہروں میں ہوگا تارا جب وہ آتی ہے تو ہر شخص کے گھر میں 11,000 وولٹ نہیں ہے بلکہ وہ آتی ہے آگے ایک چاند وہ 11,000 وولٹ اس کے اندر آتی ہے، اس کے بعد وہ ٹرانسفارمر آگے 220 بڑھاتا ہے۔ اب اگر کوئی آج ڈائریکٹ اس تار کے ساتھ ریلا لگا کے جس میں 11,000 وہ اپنا بلب جلانے کی کوشش کرے گا، وہ جل جائے گا پٹاخے کے ساتھ، پٹاخہ مارے گا روشنی نہیں تباہ ہو جائے گا، کیوں اس کی اندر صلاحیت 220 وولٹ
का मुंतकिल कर दिया। तो जब डायरेक्ट आप वहां पर पहुंचेंगे, अल्लाह ताला ने अपना कानून जब भेजा तो 11,000 करोड़, 11,000 करोड़ का था। लेकिन जब आया अल्लाह का नबी का वो दिल था जो बतौर ट्रांसफार्मर पे था, कि जब उस पर उतरा तो उस ट्रांसफार्मर में वो कबूल करने की सलाहियत थी जो दुनिया में कायनात में किसी इंसान को नहीं है। वो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर उतरा, उस कब्र में इतनी सलाहियत थी कि वो उस 11,000 में निकाल ले रहा हूँ। अल्लाह का रसूल कितने बोल रहे हैं, वो बिजली का हाथ ये है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद नूरी फरिश्ते हैं। जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए तो जिस वक्त जन्नत में ताबूत पर उड़ने का वक्त आया तो अल्लाह के नबी ने चलो कहा जिब्राइल ने अगर एक शरीर में बरतर परम करोगे तो जन्नत सुजत परम अगर बात किसी के बराबर बात होगा अल्लाह के नबी बराबर अल्लाह की तजल्ली को फरिश्ता जो सबसे अल्लाह का करीबी है वो बर्दाश्त प्रकट हो गई। लेकिन अल्लाह ताला ने बर्दाश्त करने की सलाहियत अल्लाह के नबी में दे। यही वजह है अल्लाह के नबी सिदरतुल मुंतहा से अकेले ऊपर गए, कोई गुलाम नहीं, ये सलाहियत। तो दुनिया में जब अल्लाह ने कुरान भेजा तो इसके अंदर कितने आदाब बोलते हम पे अल्लाह के नबी पर असर उतारा। जब आ गया तो अल्लाह के नबी ने उसको आगे अपनी उम्मत बिना शुरू किया वो कौन आमा। अब अल्लाह का नबूवत चली गई, दुनिया से चले गई। अब वो 220 बोलते सहाबा का वो है कि आप डायरेक्ट अल्लाह के नबी को छोड़कर अल्लाह को नहीं समझ सकते। डायरेक्ट अल्लाह के नबी को छोड़कर अल्लाह को समझने के लिए जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कुछ फरमाया नहीं हुआ, बस उतना ही जितना मैंने चाहिए। अल्लाह के नबी को बोलोगे तो अल्लाह को बोलोगे नहीं बोलोगे। किसी ने पूछा था अकल किसे कहते हैं, उसने कहा अकल उसे कहते हैं जो खुदा को तलाश करे। उसने कहा कि खुदा किसे कहते हैं, उसने कहा खुदा वो है अकल वो है जो खुदा को तलाश करे और खुदा वो है जो अकल के ना। इसलिए अपने अकल से खुदा को तलाश करने की जरूरत नहीं मिलेगा, वो तो फिर खर्च पड़ेगा पूरी जाएगा। अब उसके बाद अल्लाह का नबी आया और अल्लाह के नबी ने सहाबा तक मुंतकिल कर ये दोस्तों इसके अंदर सलाहियत। अब अल्लाह के नबी की इबादत में आना सहाबा की इबादत है। अब सहाबा ने दुनिया से शरण करना, अब होगा क्या? अब अल्लाह ने फरमाया कि सहाबा के बाद कौन आएंगे? मेरी उम्मत के उलमा। अल्लाह ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा आएंगे। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो अब उलमा आएंगे। अब उलमा कौन है? लोग कहते हैं उलमा की क्या हैसियत है? मैं कहता मौलवी क्या दुनिया के हाथ में इस वक्त 220 या 110 का हाथ के पास आ जाएगा तो फिर उसके बाद आपने पेट में लाना है, आपने कोई दूसरी चीज लानी है। तो हर चीज में 110 या 220 की लानी है, इसमें 12 वर्ष की लानी है, इसमें 6 वर्ष की लानी है, इसमें 3 वर्ष की लानी है, इसमें 1.5 वर्ष की लानी है। सलाहियत और 6 वोल्ट की या 12 वोल्ट की है। अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? जुड़ जाएगा। या अडाप्टर लगा तो अडाप्टर जब लग जाता है तो उसके 2-3 चीजें होती है, उसको इधर लगा होता है। ये 3 वोल्ट के लिए, 6 वोल्ट के लिए अडाप्टर में 220 वोल्ट की कबूल करने की सलाहियत मौजूद होती है और वो आगे 12 वोल्ट, 2 वोल्ट, 6 वोल्ट आगे देखता है जिसकी जरूरत है। अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे 12 वोल्ट से लेकर नीचे तक तो वो उड़ जाएगा। इसके लिए अडाप्टर को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये अडाप्टर है, ये उलमा अडाप्टर है कि इनके अंदर अल्लाह के नबी को समझने के लिए सहाबा को समझने की सलाहियत जो 200 के सहाबा को था आया। अब उसको समझने की
उसकी सब कोई यहाँ की बात करने लगता है। बादशाह था, उसको भाव आ गया, उसने आकर कहा, किसी को बुलाया, बुलाकर कहा, मेरे भाव आया कि मेरे दांत सारे झड़ गए, उनके दांत। उससे पूछा कि मौलवी था, कुछ था, उसने कहा बाप की ताबीर ये है कि आप इस जिंदगी में आपके तमाम रिश्तेदार आ जाएंगे। पहले क्या रखने का है? लेकिन अंदाज का एक लंबी उम्र पाएंगे जब मौलवी आएगा तो बात सबसे उससे पहले पे हम आगे हर और दूसरे का काम ये है कि अगर बहस करेगा तो फिर कोई सीधा उसको 11,000 व्यूअर है। आजकल लोग कभी मतलब कुरान पढ़ के कोई बात नहीं, मैंने हदीस पढ़ ली तो कोई बात नहीं समझ कोई है जो ये तरीके से सिखाते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला सब को ये मुबारक करे, मुश्किलात शर से बचाए, फितने से बचाए, बस से बचाए और वो अपने कहा है अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद 65 पहले क्या